So today my topic is that never be surprised when the strange things or usual thing, unusual thing happen in our तो life. पास्टर का आज का विषय यह है कि जब आपके जीवन में कुछ नई चीजें होती हैं तो उन चीजों में अचंभा ना करें। So the Bible encouraging us. तो बाइबल हमसे क्या बात कर रही है? We should never be surprised हमें कभी भी अचंभित नहीं होना है when something happen in our जब life. कुछ अचानक से हमारी लाइफ में होता है, When strange thing happen in our जब life. कुछ अलग सा हमारी लाइफ में होता है, Unusual thing happen in our कोई भी life. अलग तरह की चीज होती है। See, God has, when we read Bible, जब बाइबल पढ़ते हैं, Bible tell everything. बाइबल सब कुछ बताती है। So today just listen carefully. आज ध्यान से सुने, Because when something happen, क्योंकि जब हमारे जीवन में कुछ होता we है, used to be question. हम प्रश्न पूछते हैं, Why? क्यों हुआ मेरे साथ? So that is the question. This is the answer for you all. तो पास्टर कह रहे जो आपके जीवन में जो परेशानियों के प्रश्न है ना, आज उन सबका उत्तर इससे मिलेगा। God never say that, and also people always telling that I believe in Jesus Christ, I come to church, why this thing happening to me? कई लोग बोलते हैं कि मैं तो चर्च पे आता हूँ, यीशु मसीह में विश्वास भी करता हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है? So we used to ask why. तो हम प्रश्न पूछते हैं, And why this problem is not go away? और ये परेशानी क्यों नहीं जा रही मेरी लाइफ So से? everyone has a different problem. हम देखें तो हम सबके जीवनों में एक परेशानी ऐसी होती ही है। Manish has a different problem. मनीष भाई की अलग प्रॉब्लम है, Brother Simon has a different साइमन ब्रदर problem. की अलग प्रॉब्लम है, Or even in the one family, एक परिवार में we होकर have a भी different problem. हम सबकी अलग-अलग परेशानी, Priti, Satish, they have different problems. प्रीति दीदी, सतीश भाई की अलग-अलग And प्रॉब्लम। Suman, Varun, even though they have a child, they have a problem. छोटे-छोटे बच्चे और वरुण और शिवम, उनकी भी अपनी-अपनी परेशानियां They हैं। have a problem what? क्या प्रॉब्लम है उनकी? They want to eat something, उन्हें कुछ खाना है, or family cannot afford, then they will be worried, या tension, फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम है तो उन्हें टेंशन होगा, or exam, या उनकी पढ़ाई आ जाएगी, studies, पेपर school. आ जाएंगे, स्कूल की So पढ़ाई। everyone has a problem. तो हर किसी की लाइफ में अलग तरह की प्रॉब्लम। Sister Dad, there is a lot of problem. सिस्टर दर्द की लाइफ So में अलग in प्रॉब्लम। different way. तो हर किसी के जीवन So में there is अलग a तरह की today Peter is encouraging तो us. आज पतरस हमें क्यों क्या My बोल रहे dear हैं brother and कि sister. मेरे भाई और बहनों, In English Bible. यहाँ पे है My प्रियो dear लिखा है। brethren. हिंदी बाइबल में लिखा है प्रियो। So that means Peter is addressing with us. मतलब पतरस आज हमसे क्या बात कर रहा है? And God's word is God Himself. परमेश्वर God speak to Peter and Peter is speaking to us. मतलब परमेश्वर ने पतरस से बात की, पतरस अब हमसे बात कर See that in the Bible, बाइबल में my dear brothers and sisters, जब हम बोलते हैं मेरे प्रियो भाई और or बहनों, sometimes brethren, या मेरे प्रियो, or sometimes beloved. या मेरे प्रियो, Sometimes Paul used as a beloved, जब हम देखते हैं पौलुस जब भी पत्र लिखता है तो मेरे प्रियो, or sometimes Paul used as a saint, या वो कहते हैं मेरे सारे संत जनों, or sometimes they use as a brothers. या मेरे भाइयों। So here, brethren talk about the close relationship. तो यहाँ पे हे प्रियो लिखा है, मतलब कि एक नजदीकी संबंध की बात हो रही है। Who are believing Christ, मतलब जो लोग प्रभु में विश्वास करते who हैं, got salvation, जिन्हें उद्धार मिल चुका है, who come to the Lord. जो प्रभु में आ चुके हैं। So Peter is not addressing to the people who don't know God. तो पतरस यहाँ उन लोगों से बात नहीं कर रहे जो प्रभु को नहीं जानते। Peter is addressing to the people who believe in तो Christ. पतरस उन लोगों से बात कर रहा है जो ऑलरेडी प्रभु में विश्वास कर चुके हैं। Because when people come to Jesus, क्योंकि जब लोग यीशु में आते हैं, people used to ask question. लोग क्वेश्चन पूछते हैं। Why I come to church, I go to church, I believe Jesus, why my problem never go कई away? बार लोग कहते हैं कि मैं चर्च आ रहा हूँ, रेगुलरली आ रहा हूँ, तो फिर भी मेरी लाइफ में क्यों प्रॉब्लम है? Why this issue never go? क्यों मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम कभी नहीं Or आता? the more I come to Jesus, या बल्कि जितना मैं यीशु में बढ़ रहा हूँ ना, the more coming this प्रॉब्लम problem. बल्कि बढ़ रहा है। Or the more I pray God, जितना मैं प्रार्थना और उपवास कर रहा हूँ the ना, more I fasting, उतना ही more challenges are उतनी coming, परेशानियां बढ़ रही more हैं, difficulties are उतनी coming. मुश्किलें बढ़ रही हैं। Why? तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? So there is a Peter is made clear to us here. तो पतरस यहाँ में साफ-साफ क्या बता रहा है? So here Peter is telling to us, पतरस क्या बोल रहा है? God is telling to us, प्रभु क्या बोल रहा be है? careful, look nicely, read nicely. Here the Bible says, beloved, do not think the strange thing concerning the very thing, very means worried and answer. When it is to be you, and though some strange thing happen to you, see, don't be worried, my beloveds. Sometimes unusual thing will happen in your life. तो यहाँ पर क्या लिखा है प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर हुई। Bible says, don't be surprised. बाइबल कहती है अचंभा मत करो। When strange thing happen, जब अनोखी चीजें आपके जीवन में don't be होती हैं, surprised. चिंता मत When करो। your son and daughter are lost, जब आपके बेटा बेटी की मृत्यु हो don't जाए, be surprised. चिंता मत करो। When sickness happens जब to you, बीमारी आपकी लाइफ में आ जाए, don't be surprised. तब भी अचंभा When मत your करो। family attack, जब तो परिवार पर अटैक आ जाए, don't be surprised. सरप्राइज भी When मत your करो। husband and wife die, जब पति पत्नी से कोई मर जाए, don't be surprised. तो अचंभा When मत your करो। pastor अचानक से lost हो गया, अगर आपके पास से नहीं आती
आती है तो don't be surprised. अचंभा मत करो Something, the strange thing that you never be experienced that your life happened. कि आपने कोई चीज सोची ही नहीं थी कि मेरे जीवन में हो जाएगी, When हो you गई। come to Jesus, आप जब यीशु में आते when you pray, जब प्रार्थना कर don't be surprised that somebody try to kill you. तो अचंभा न करे, अरे कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। Don't be surprised that some people attack you. तब भी अचंभा न करे, वो आक्रमण करने की कोशिश Don't be करे। surprised that sickness that you never experienced. जो कोई बीमारी अपने जीवन में नहीं, प्रभु में आने की बीमारी भी आ गई। Or don't be surprised that before you have money and now you come to God no money. तो इन चीजों में अचंभा न करे कि अरे प्रभु में आने से पहले बल्कि ज्यादा अमीर था, अब तो गरीब होता जा रहा है। Don't be surprised that before I don't know God, I got a job, but now when I come to God, my job are lost. इस चीज में अचंभा न करे, प्रभु को जानने से पहले आपकी अच्छी खासी नौकरी थी, प्रभु में आने की नौकरी चली गई। Don't be surprised that before I don't know God, I am rich, but now what is happening? तो आप सोच सकते हैं प्रभु में आने से पहले ज्यादा अमीर था, अब तो गरीब पे गरीब होता जा रहा हूँ। So there is a question here. तो कई बार लोग ऐसे प्रश्न पूछते So the word of God is encouraging हैं। तो us. आज परमेश्वर का वचन में क्या बोल So रहा the है Bible says unusual thing will कि happen. अनोखी चीज तुम्हारे जीवन में होंगी, Strange thing will happen. होंगी, Because we are living in this world. क्योंकि हम इस दुनिया So में all these things happen. ये सारी चीजें जब होंगी, Sometime कभी-कभी we run away, we lost our faith. और कई बार इन चीजों के होने से हमारा प्रभु में विश्वास हट जाता है। Even though you baptized, हाँ, बपतिस्मा तो नहीं even लिया, though you experience God's power, हाँ, परमेश्वर के चमत्कार भी देख लिए, even though you always answer God, answer your prayer, और कई बार परमेश्वर की प्रार्थना का जवाब भी देता है। even though you always work together with pastor, आप पास्टर की तरह ही साथ में घूमते हो, always you preach the gospel, आप प्रचार भी करते always हो, you heal the people, लोगों को चंगाइयाँ भी always करते you हो, deliver people, छुटकारे भी देते हो, always you're worshiping, आराधना भी करते हो, always you are a preacher, या आप प्रचारक ही हो गए हो, you might be a prophet, हो सकता है विश्व you might be a healer, चंगाई देने वाले, but any strange thing can happen any moment, लेकिन ये anytime. सब होने की वजह से ये नहीं कि आपके जीवन में कभी अनदेखी चीजें नहीं होंगी। In my life, पास्टर के जीवन in में all your और family. हम सबके लाइफ, But to face that thing, लेकिन इन चीजों का सामना करने के लिए Peter said, पतरस ने क्या बोला? don't be surprised. अरे अचंभा मत करो, When this thing happens, जब ये चीजें होंगी don't be surprised. तो अचंभा मत करो, Because with this world we are living, क्योंकि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं ruled by Satan, उसमें शैतान राज करता है। surely this thing will तो happen. शैतान तो इनकी वजह से So इसलिए in that situation, उन परिस्थितियों में how we need to do it? करना क्या है, How we need to deal it? कैसे डील करना है, How we need to come out from that कैसे situation? परेशानी से बाहर आना है। We need to have faith, सबसे पहले no विश्वास, matter what. चाहे कुछ भी When the परेशानी strange हो, thing happens, जब अनदेखी चीजें हो, that is what God is telling us here. तो परमेश्वर में क्या कह रहा है? Because everyone here, जितने लोग यहाँ we हैं, have different strange thing happening. हम सबकी लाइफ में रोजमर्रा में अलग-अलग चीजें The होती हैं। sickness that you never have happening. बीमारी जो नहीं थी वो हो गई, The family that you never issue happening. फैमिली में कभी लड़ाई नहीं, लड़ाई भी हो गई, The prayer that you are making but never happening. प्रार्थना तो आप कर रहे हो, जवाब आ नहीं जा रहे हैं। Or before your family are good but now what is happening? पहले तो परिवार में खुशी थी, अब तो लड़ाइयाँ हो रही हैं। Before you were praying so much but now what is happening? पहले प्रार्थना कर पाते थे, अब नहीं कर पाते हैं। Before you have desire to serve the Lord but what is happening in your पहले life? प्रभु को सेवा करने की बहुत मन था, अब सेवा करने का मन नहीं करता। Or before you have a lot of money, you have a lot of friends, you have a lot of people helping you. पहले बहुत लोग आपकी मदद करते थे, अब नहीं करते। But now what is happening? तो फिर हो क्या रहा है? You alone. आप अकेले हो गए You हैं, feel lonely. आपको अकेला लग रहा है। All my friends, loved one, dear one has gone. अरे मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त लोग सब मुझसे दूर हो रहे हैं। So that is the Bible is telling us. तो बाइबल क्या बता रही है? This strange thing will happen. कि ये अनोखी चीजें होंगी। In the Amplified Bible say, unusual thing will happen. तो बाइबल एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है कि अजीब चीजें होंगी, Things that you never thought जो about. चीजें कभी नहीं सोची, Things that you never think about. कभी नहीं सोचा। You might be have a good relationship. हो सकता है आपका अच्छा रिश्ता You हो, might be a broken heart. टूटा हुआ दिल भी हो, अचानक से गाय हो गया. और अचानक से something that your relationship have brought. कहीं ना कहीं आपका रिश्ता, आपका संबंध टूट गया, Because that is not God's will. क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं है। So all these things happen. तो आप सोच सकते हैं कि क्यों You हुआ should ऐसा? not be surprised. तो आपको इन चीजों पे अचंभा नहीं You करना should है। not give a chance for Satan to come and attack you. और ऐसा होने के बाद आपको शैतान को अपने जीवन में रास्ता नहीं देना है। Because Satan wants to see these things. शैतान तो चाहता ही है कि आप रोते रहो। Satan thinks that strange thing happened to you. शैतान सोचेगा अरे इसकी लाइफ You में need क्या to होगा? call upon the name of Jesus every day. अगर आप रोज भी यीशु से प्रार्थना करते हो ना, That is what Peter said. पतरस ने क्या बोला? So many unusual things will तब happen. भी बहुत सारी अनदेखी चीजें होंगी, Strange things will happen. अनोखी चीजें होंगी। My beloved, मेरे प्रियो, what is your stand for Jesus Christ? पास्टर आज ये पूछते हैं कि आपका उस परिस्थितियों में यीशु के लिए क्या निर्णय रहता है? Sometimes people when the strange thing happen, कभी-कभी जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं प्रार्थना नहीं करेगा, मैं वो पूजा करेगा, मैं प्रभु के पास आया, इस चीज मेरे लाइफ में आया,
Or now when the strength happen, और जब चीजें होती हैं, I will never go to church. अब मैं चर्च ही नहीं जाने वाली। When I go to church, जब चर्च जाती हूँ ना, चीजें होती हैं। before I never पहले experienced. तो नहीं होती थी। And then also when something happen, जब कुछ होता है, oh now you are start your testimony before. Oh God is good. पहले आपकी गवाही थी प्रभु हर समय God अच्छा is है, so wonderful. प्रभु भला है। Now you turn your testimony. अब आपकी गवाही ही बदल गई है। Now you say you change to demons. अब आप शैतानों की टेस्टिमनी दे रहे हो। That's what God is. The Bible is that. तो बाइबल क्या बता रही है? My beloved, कि मेरे प्रियो, my brothers and मेरे sisters, भाइयों बहनों, be careful. सावधान रहो Unusual thing will happen. कि अनोखी चीजें तुम्हारे जीवन में होंगी। Strange thing will happen. अनोखी चीजें होंगी। Because Satan want to see. Because every day the same thing happen. अगर रोजमर्रा में एक जैसा ही सब कुछ हो रहा है, Then you will not. You be okay. तब हम क्या होता है वो नॉर्मल हो जाते हैं। See now when you always sick, अगर आप हमेशा बीमार रहते you हैं, always headache. हमेशा सिर में दर्द रहता है, So these things become a normal in your life. तो थोड़े दिनों बाद हाँ मेरे सर दर्द रहता So ही है। Satan think, शैतान को लगता है हाँ तो normal हो गया, मेरे को थोड़ा strange thing लेके आना पड़ेगा, तो वो प्रभु को छोड़ेगा. So that is how the Satan work like तो that. शैतान कैसे काम करता है? So Satan will think that before you are always sickness, always have stomach gastric. तो जैसे मान लो आपके हमेशा बॉडी में कोई प्रॉब्लम रहती है, No, now you know that you have a gastric. आपको पता है आपको मान लो गैस की प्रॉब्लम है, So now for you now not strange. तो अब रोज ही होती है तो लगता है कोई बड़ी बात ही नहीं है। नॉर्मल हो गया, तो आप प्रभु में प्रार्थना करते रहते हैं, सास में आते रहते हैं और प्रभु में बढ़ते रहते हैं, तो now Satan know that वो चीज नहीं चलेगा, अब भी तो स्ट्रेंथ थिंग अनयूजुअल थिंग निकालना पड़ेगा, तो वो प्रभु को छोड़ के मेरे पास आएगा. So now Satan is every day making a new thing. तो शैतान हमारी लाइफ में रोज अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम्स लाता है, Because in those things happen, क्योंकि ये चीजें होती हैं, Satan want to question you. You know, Satan want we should question you. शैतान सिर्फ यही चाहते हैं कि जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम हो तो हम परमेश्वर को बोले परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, Or Satan want when you cry. और शैतान को बड़ा मजा आता है जब आपकी आंखें Satan निकलती doesn't हैं। want to see your happiness. शैतान कभी नहीं चाहता कि आप मुस्कुराएं। See your दुश्मन, आपका दुश्मन है, आपका एनिमी है. They will never like to see your happiness. आपका दुश्मन कभी आपको हंसते नहीं लेकिन हमेशा रोते हुए देखना चाहता But है, when you say, लेकिन जब आप दुखी होते when हो, you cry, आप रोते हो, they will happy. शैतान बड़ा मजा करता है। उनका परिवार तो चढ़ जाते हैं, ये हुए ना, तो लेकिन रोते रहते हैं और बीमारी आते रहते हैं और सारा ड्रिंक करके लड़ाई करते रहते हैं. So that is how the Satan is. He always want those things. तो शैतान हमेशा यही चाहता है कि हम दुखी रहें और रोते रहें, That is he want. यही तो शैतान चाहता है। That is when you have problems. और इसलिए जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, In the book of Revelation chapter 12, प्रकाशित वाक्य बाद में अध्याय में लिखा the है, Bible says, बाइबल कहती है Satan is the always questioning, no, accuser of the brethren. शैतान के लिखा है कि हमेशा वो शिकायतें करने वाला है। So when you have complained, अगर आप हमेशा शिकायतें करते हैं प्रभु से, Satan will come in the presence of God शैतान भी परमेश्वर की उपस्थिति में and he आता will है accuse you. और वो आपको उल्टा बोलेगा। See, देखो, पास्टर कमाई आपका बच्चा है, आप तो बताता है और आप वो कलाई में आप आशीष देते हैं, लेकिन आज दिन देखो आपका क्वेश्चन कर रहा है, आपका बदनाम दे रहा है. So Satan want this accuse. That's why the Bible says Satan day and night accusing to the brethren. बाइबल ऐसा बताती है शैतान वो है जो दिन रात परमेश्वर के सामने हमारी शिकायतें लेके जाता है और कहता है देखो आपने इस बंदे को इतना आशीष दिया, प्रभु में लाया, ये बंदा इतना बदल गया था, देखो ये कितना पाप कर रहा है और परमेश्वर आप इसको आशीष क्यों देते हो, देना ही बंद कर दो। So that is how the Satan works. तो शैतान हमेशा ऐसे काम करता That is why here the Peter said, है। तो यहाँ पतरस क्या कह रहा my है brothers and कि मेरे sisters, भाइयों और बहनों don't be surprised. तो अचंभा मत करो, So many problems will come. प्रॉब्लम्स तो आएंगी, So many issues will come. बहुत सारे इश्यूज भी आएंगे, But लेकिन suffer as a Christian. एक मसीह होते हुए परेशानियों का सामना करो। So in that unusual thing तो happens in जब your वो life, चीजें आपकी लाइफ में हो, sometimes you may be अचानक से something happen that you never expected. कभी आपके जीवन में जो भी सोचा नहीं था अचानक से हो गया, मान लो You never be imagined also. आपने कभी कल्पना नहीं करी थी, Those things happen. वो चीजें हो गई। Bible said, शैतान Bible said, बाइबल क्या बताती है, don't be surprised. तो उस समय अचंभा मत करो, Surely this thing will happen. ये चीजें तो होंगी, Even though you believe in आप Jesus, विश्वास करोगे प्रभु में तो भी होंगी, even though you are a child of आप God, प्रभु की संतान हो तो भी even though होगी, you got salvation, आपको उद्धार मिल गया तो भी होगी, surely होगी होगी, this thing will ये happen. चीजें होंगी। But when this thing और happens, जब चीजें होंगी what is your stand? तो आप क्या करते हो, ये सबसे What you इम्पोर्टेंट need to do? है। आपको क्या करना है, Answer is here. और उसका उत्तर यहाँ लिखा है, Verse 13. 13 वचन। So when strange thing happen,
यहाँ पे जब अनोखी चीजें हो, what is we need to do? हमें करना क्या है? Bible say, but rejoice to the extent that your particle of Christ's suffering, that with the glory and rebel, you may also be glad exceedingly joy. 13 में क्या लिखा है? पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। Amen. Amen. आमीन। God is good all the time. See, the Bible says when the surprising, unusual thing बाइबल happens, कहती है जब नेकी चीज आपकी लाइफ में हो, when the strange thing happens, अनोखी चीजें हो, what is the answer? क्या करना है? Crying, complaining, condemning, and then you go back to रोना नहीं है, idol. आंसू नहीं बहाने हैं, मूर्ति पूजा नहीं करना That है, is not our answer ये नहीं करना है। as a child of God. अगर आप प्रभु के बच्चे अपने आप ऐसा मानते हो, कीजिए। अगर एक मसीह हम लोग कहते हो, What the Bible says? तो बाइबल क्या कहती है? Joy. उस समय आनंद मनाओ। See, बहुत difficult time में struggle में रिजॉय करना का मुश्किल है। अब इतना दुख है, रिजॉय करना का easy है, मनीष, easy होता है। अब इतना broken heart में आनंद करना का बहुत मुश्किल होता है ना। और विक्रम, हम दुख होते हैं ना तो very very difficult to be rejoice. जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, उस समय प्रभु में आनंदित करना, वो आनंद करना बहुत मुश्किल है। So the Bible says strange things will happen. बाइबल कहती है अनोखी But चीजें those होंगी, things happen. लेकिन उस सिचुएशन में Unusual things will happen. जब अनोखी चीजें हो, Surprise will happen. अचंभित हो जाए, होना नहीं है। Never expected. आप जो कभी नहीं सोचा था। This surprise is not talking about good thing happening. Okay? यहाँ पर ये जो लिखा है ना, अनोखी चीजें, मतलब कुछ अच्छे चमत्कारों की बात नहीं हो रही, बुरी बुरी चीजों की बात हो रही Bible है। is not talking about surprise. Oh, pastor is 1 crore giving me a surprise. No. ये नहीं पास्टर ने 1 करोड़ रुपए दे दिए मेरे अकाउंट में, ये अचंभे की बात नहीं हो रही है। अनोखी चीजें मतलब कुछ गलत हो गया, कोई बीमारी आ गई, कोई परेशानी आ गई, कोई मर गया, कोई दुख आ गया, उसकी बात हो रही है। This surprise talk about you, even though you believe in Christ. अगर आपने मसीह विश्वास कर लिया तो भी Something will happen. कुछ तो होगा। Your broken heart will आपके happen. दिल भी टूटेंगे, Your husband may leave you. आपका पति Your wife may leave you. आपकी पत्नी Your आपको छोड़ देगी, boyfriend, girlfriend may leave you. आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी छोड़ Your देगी, pastor may leave you. आपके पास्टर भी छोड़ सकते हैं, Your children may leave you. आपके बच्चे भी आपको छोड़ सकते हैं। This world that we are living. इस दुनिया में हम जी Your रहे हैं, job may leave आपकी you. नौकरी भी छूट सकती Your है, family will leave आपका you. परिवार टूट सकता है, Your society will leave आपका you. समाज आपको निकाल सकता है। But लेकिन उस समय don't be surprised. सरप्राइज नहीं होना है। What Bible says? बाइबल क्या कहती है? Rejoice. आनंद करो। हम इतना मुश्किल में मैं भी हूँ, मैं प्रीचिंग करते हो, लेकिन मुश्किल का टाइम ना आनंद करने में बहुत मुश्किल होता है। But the Bible says rejoice. This is our victory. पर बाइबल यही बताती है कि ये चीजें मुश्किल तो है, दुख के अंदर खुशी बनाने के लिए बाइबल कहती है तुम्हें खुशी मनाना है, आनंद दिखाना है। God is always opposite. बाइबल में परमेश्वर हमेशा उल्टी बात करते हैं, दुनिया कहती है उस हिसाब से नहीं परमेश्वर बोलता। God's way is completely परमेश्वर different. की सोच और उनके रास्ते हमारे रास्तों से बहुत अलग है। We're different from the human point view or point. जैसे इंसान सोचते हैं, परमेश्वर वैसा नहीं सोचते। हम कभी-कभी आपका strengthening up है. कुछ अलग सा कुछ होता है। Human point of view. इंसान क्या सोचेगा? People will say, लोग कहेंगे ओ मालूम है, वो परिवार हो, वो इंसान तो प्रभु में इतना विश्वास करता था, फास्टिंग लेता था, प्रभु में रात सुबह शाम प्रार्थना करता था, चिल्लाता था, क्यों ऐसा हुआ? Human point of view always like this. तो इंसान हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। When you are growing in the Lord, जब प्रभु बढ़ते हो human point of view, तो इंसान क्या बोलते हैं? people put you more परेशान. They will accuse you. लोग आपको उल्टा उल्टा शिकायत करेंगे, आपकी चुगलियां करेंगे। Oh, they will not think that, but they will put you more. क्यों आपका लाइफ ऐसा हो गया? चार जाते रहते हैं, टाइम भी दिया, पढ़ना भी दिया, पास्टर का साथ आप तो पढ़ने के लिए घूमते रहते हैं, क्यों ऐसा हो गया? Human tongue is always like that. इंसान हमेशा ऐसे ही कहते हैं, But God is never. पर परमेश्वर ऐसा नहीं God's way कहता। is complete. परमेश्वर का रास्ता अलग है। So when this thing तो happens, जब चीजें होती even in your family आपके member, परिवार में भी, even in your church member, आपके चर्च के लोगों में भी, even in your pastors, आपके पास्टर की लाइफ What में भी, Bible say? बाइबल क्या कहती है? Rejoice. आनंद करो, give thanks. धन्यवाद दो, Because Satan want you to cry. क्योंकि शैतान तो चाहता ही है कि आप रोने लग जाओ। Satan want you to complain. शैतान चाहता है कि आप कंप्लेन करो। Satan want you to condemn God. शैतान चाहता है कि आप प्रभु को नकार दो। So he want you to cry. शैतान चाहता है कि आप रो। He want you to let God. वो चाहता है कि आप रोते रोते प्रभु को छोड़ दो। He want you to backslide. वो चाहता है कि आप प्रभु से दूर हो जाओ। He want you to go back the place that you come from. शैतान चाहता है कि जिस गंदी जिंदगी से आप पहले बाहर निकले हैं उसी पे वापस चले जाएं। So he want you to do this thing. शैतान चाहता है कि हम ये चीजें करें। That now all this great thing और happen. जब ये चीजें अनोखी होंगी, You are rejoicing. लेकिन अगर आप आनंद करोगे,
हालेलुया You are बोलते हैं, praising God. प्रभु की महिमा You are करोगे, more coming to church. ज़्यादा You are कलीसिया more में, fasting. ज़्यादा You are उपवास more करोगे, prayer. ज्यादा प्रार्थना करोगे, Then Satan will say, तो शैतान बोलेगा अरे यार, मैं इतना काम दिया तो वो तो देखो आनंद हो रहा है, खुश हो रहा है. So that is the thing. So you got the victory in that जब way. आपको सफलता मिलती है इस तरीके से कि शैतान चाहता था कि आप रो लेकिन आप नहीं रोए, तो शैतान तो हार गया, So his plan has failed. उसका प्लान तो खराब हो गया. His plan is to complain. You are cry, you are depressed, you are suicide. तो शैतान तो सबकी ही लाइफ में प्रॉब्लम लाता है, लेकिन वो चाहता ये है कि उन प्रॉब्लम के आने के बाद अब रो के प्रभु को छोड़ दो, Or you might be give up your life and suicide. या चलो पंखे से लटक जाते हैं. That is how he come. वो चाहते हैं कि हम आत्महत्या करें. Then you say thank you Jesus for this problem. लेकिन अगर प्रॉब्लम आती है आप बोलते कोई बात नहीं प्रभु, इस परिस्थिति में मुझे पता है I know that you will save my मुझे life. पता है मुझे बचा ही लोगे. Thank you that you are remove away this मैं man. धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने मेरे जीवन से आदमी को निकाल Thank you दिया. that you remove away this job. प्रभु आपने मेरे जीवन से नौकरी को निकाल Thank you दिया. that you remove away this girl. धन्यवाद आपने इस लड़की को निकाल दिया. Thank you that you remove away this my best friend. निकाल दिया, अच्छे से मेरे दोस्तों को मेरे जीवन से हटा So दिया. when you are turned into a testimony, जब आपके जीवन की प्रॉब्लम्स को आप गवाही बना देते हैं, instead of crying and depression and suicide, रोने से आत्महत्या करने से बेहतर got the victory from Satan. आपको शैतान से तो जय मिल गई. That is why God said, इससे परमेश्वर when the strange thing happen, जब अनोखी चीजें हो but rejoice, आनंद मनाओ, because Christ has suffered for you. क्योंकि मसीह ने भी आपके लिए दुख उठाया. See what you are going through. जो आपके जीवन में हो रहा है ना, Jesus has already gone. बाइबल ऐसा बताती है यीशु मसीह ने ये सब सहा है. So we suffer like Jesus Christ. तो जब यीशु सहकर नहीं रोया नहीं चिल्लाया तो हम क्यों? So when a Christian surprising happen, जब मसीह लोगों के जीवनों में अनोखी चीजें होती we हैं, should be like a Christ. तो हमें भी यीशु मसीह की तरह ही उन चीजों को संभालना आना चाहिए. See Jesus Christ. आप देखो यीशु You मसीह live in this वो world. दुनिया में रहे, What you are facing, जो आपकी लाइफ में हो रहा है Jesus also facing. यीशु ने भी सहा. Jesus go through sickness. यीशु के जीवन में बीमारियां आई. Jesus was coming to this world in the poor carpenter house. यीशु मसीह ने गरीबी देखी कि गरीब घर में पैदा हुए. Jesus was not delivered, or Jesus was not born in rich family. यीशु मसीह किसी अमीर परिवार में पैदा नहीं हुए. He experienced poverty. उसने गरीबी भी देखी, He experienced pain. उसने दर्द देखा, He experienced sickness. दुख देखा. He experienced rejection. यीशु मसीह को नकारना भी लोगों ने नकारा. See, Jesus Christ, even the Bible says that even hometown didn't believe Jesus. So he go out and do the ministry outside of his तो बाइबल ऐसा बताती है यीशु मसीह खुद के घर वालों ने, उनके आस पड़ोस, उनके परिवार वालों ने, उनके शहर वालों ने यीशु मसीह विश्वास नहीं किया, इसलिए उन्होंने अपना शहर छोड़ के बाहर चमत्कार. Jesus was brought up in Nazareth. यीशु मसीह तो नासरत में पैदा But हुए. his ministry focused in where? Simon, where? Jesus' ministry focused in where? What is that? One is where? Yes. Jesus was brought up in Nazareth. यीशु मसीह नासरत में पैदा हुए. Jesus was born in Bethlehem. बेथलेहम में पैदा हुए, नासरत में बड़े हुए, And his ministry, और उनकी सेविका he is doing Galilee. वो गलील में हुई. He do ministry everywhere. सेविका तो उन्होंने हर जगह But करी, head office in the Galilee. पर सबसे ज्यादा मेन उन्होंने अपनी सेविका गलील में करी. Because क्योंकि his Nazareth people didn't believe when Jesus क्योंकि was. जब नासरत में जाके उन्होंने जब वो गए तो लोगों ने विश्वास नहीं किया कि ये मसीहा है. Why? क्यों? Because they see the Joseph and Mary house. क्योंकि इन्होंने कहा अरे हमने इसके मम्मी पापा को तो देखा है So बचपन they से, never see the God's presence. तो उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति उसमें नहीं They देखी. think that Jesus Christ was the son of Mary and Joseph. क्योंकि उनके दिमाग में यही फिक्स था कि ये तो यूसुफ और मरियम का बेटा है, इंसान And का बेटा है. Joseph was a carpenter. और यूसुफ का लकड़ बनाने वाला Till था. today we go to Jerusalem. आज भी अगर आप यरूशलेम जाए, Joseph house is there. उसका घर आज भी है. His carpenter, what is that? The room that used to make a carpenter making a door, window, and making a house. Everything is there. इस कमरे में वो लकड़ी ऐसे घिसता था, काम करता था, वो कमरा आज भी वैसा का वैसा ही है. People used to go and लोग see जाते हैं और Joseph. देखते हैं. If you go to Nazareth, अगर आप नासरत जाएंगे, still all the Christian people they used to आज भी go. बहुत पुराने मसीह लोग जो रहते हैं बताते हैं ये चीजें ऐसे हुई. So now they see that family. तो मतलब कि नासरत के गांव के लोगों ने यीशु मसीह को शुरू से ही देखा. When I'm in my home, जब पास्टर भी अपने घर जाते they हैं, know who I am. उन्हें पता है पास्टर कमाई, Oh, I have so many wrong things done. उनको पता है So पास्टर if के I preach the gospel, जब उन्हें पता है कि पास्टर ने बचपन में क्या काम कर रखे हैं, अब यीशु समाचार सुनाते, अरे यही वो लड़की तो पहले ऐसे लड़की तो काम करता था,
ये लड़की तो लड़का के साथ घूमता था, ये लड़की तो ड्रंक करता था, ये लड़की तो बहुत चीज करता था, ये तो गलत है। You know, so village people will not accept. तो गांव के लोग आज भी इनको वो पास्टर की तरह नहीं समझ पाएंगे। Just give me an example. पास्टर उदाहरण दे। Same thing, Jesus Christ was like that. तो यीशु मसीह ने भी ऐसा ही हुआ। So the Nazareth people didn't believe. तो ऐसे ही नासरत के लोगों ने भी यीशु Jesus से said, I am the Messiah. तो यीशु ने कहा I am the child of मैं God. प्रभु का बेटा I come from God. मैं स्वर्ग से आया हूँ। They are angry. हैं? No, you are the Joseph. तुम तो यूसुफ और मरियम के बेटे हो। अब इसे झूठ क्या बोलते हैं? तुम परमेश्वर के बेटे कहाँ से हुए? अरे तो हम सब बच्चे हैं। But Jesus was not telling a lie. पर यीशु तो झूठ नहीं बोल रहे He थे, telling the truth. सच बोल रहे But थे। people cannot accept पर it. लोग अपना नहीं पाते कि बचपन से देखा था। That is why the इसलिए Bible says Jesus cannot perform miracle in his village. इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह अपने शहर में कभी चमत्कार नहीं कर पाए Because people didn't have क्योंकि faith. लोगों का विश्वास नहीं था तो चमत्कार भी नहीं But हुए। when people, Jesus go out to other place, लेकिन जब यीशु मसीह और शहरों में गए, people believe. लोगों ने विश्वास किया, People see that Jesus is लोगों the ने Son of God. यीशु को परमेश्वर का पुत्र ही माना And people know that God has a power. और वो जानते थे कि मसीहा में सामर्थ्य And है people know that Jesus is the real Son of God. और लोग जानते थे कि मसीहा जो है परमेश्वर का पुत्र है And they believe the gospel. और उन्होंने सुसमाचार पे विश्वास They किया, believe the prophecy. उन्होंने परमेश्वर की भविष्यवाणियों पर विश्वास किया। Before Jesus Christ comes, यीशु के आने से पहले जो भविष्यवाणियां Isaiah was की, prophesied. यशायाह ने भविष्यवाणी की there would be an Emmanuel will born. कि एक इमानुएल मतलब प्रभु हमारे साथ में पैदा होगा, Virgin will be conceived as कि son. कुंवारी गर्भवती होगी। So many prophecies are there. बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई When थी Jesus Christ was preaching to different places, और जब यीशु मसीह अलग-अलग जगहों पे प्रचार कर रहे थे, people will believe. लोगों ने विश्वास किया, But the village people didn't लेकिन believe. जो उनके अपने गांव के लोग थे उन्होंने नहीं किया। They're very difficult to accept. उनके लिए बहुत मुश्किल था इनको मसीह Because they समझना। know the myriads of वो sin. कहते हैं हम मरियम और यूसुफ को जानते हैं। So the same thing. ऐसे ही Jesus go through more than us. यीशु मसीह तो हमसे ज्यादा इधर घूमा प्रचार किया, But Jesus never suffered like a people who don't know God. लेकिन जो लोग प्रभु को नहीं जानते उनकी तरह यीशु मसीह ने सफर नहीं किया। Jesus suffered like a child of God. He is यीशु the मसीह ने ऐसा नहीं कि परमेश्वर का पुत्र हो इसलिए जीवन में परेशानी नहीं आएगी, लेकिन उन्होंने लोगों की तरह ही परेशानियों का सामना किया। See, Jesus suffered. You just think about it. आप देखिए यीशु मसीह ने कैसे सहा। Many a time when he preached, जब भी वो प्रचार करते थे, Pharisees, Sadducees always accused, फरीसी और सदूकी लोग हमेशा उन्हें उल्टा बोलते थे, always condemned. हमेशा नकारते थे, But Jesus never came. लेकिन यीशु मसीह इतना ध्यान नहीं देते थे। Jesus never focused what people say. जब लोग बोलते थे यीशु मसीह उस पर ध्यान नहीं देते थे। Jesus never focused what the society जो said. समाज कहता था यीशु मसीह उस पर भी ध्यान नहीं देते थे। Jesus never focused what the church members said. जो चर्च के लोग बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। Jesus never focused what the prophet, Pharisees, Sadducees, they are the teacher. और यीशु मसीह ये भी नहीं सोचते फरीसी सदूकी लोग जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं। Scribe, they are the scholar. जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें कितने नॉलेज हो, They are the writer. वो तो लिखते थे किताबें They know लिखते the थे, word of God. उनको प्रभु का वचन भी आता था। But Jesus Christ फिर भी यीशु मसीह never affected the people and the world and the sickness and problem they're facing that he have. He never affected his faith. तो ये कि जीवन में परेशानी आने के बावजूद उनका प्रभु में विश्वास नहीं हिला, He always focused वो हमेशा प्रभु में ही ध्यान रखते थे। and he always suffered as a child of God. प्रभु की संतान होने के नाते वो हमेशा सफर भी करते He थे, always rejoiced. हमेशा आनंद भी करते थे। So now, Satan knows that Jesus go through all these things he passed. तो शैतान को पता था कि उनके जीवन में ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। No, Satan has know that God has already passed these things. तो शैतान जानता है कि यीशु मसीह ने भी इन्हीं सारी चीजों को सहा। Satan know that God forgot these things are nothing. शैतान जानता है कि प्रभु के लिए ये सब चीजें कोई बड़ी बात नहीं। That's why Satan himself, और इसलिए खुद शैतान when Jesus was 40 days fasting, जब यीशु मसीह ने भी 40 दिन और रात उपवास किया, Satan खुद से आके प्रभु को टेम्पटेट करा. शैतान ने आगे प्रभु की परीक्षा ली। Before he used the people, पहले उसने लोगों का इस्तेमाल किया, but God never changed. लेकिन प्रभु कभी नहीं बदलता, Jesus never changed. यीशु नहीं बदलता।